सो व्हाट विल बी डूइंग इज के विल स्टार्ट विद बैश. ठीक है. Mhm. ਤਾਂ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਅ ਸ਼ੈਲ. ਸ਼ੈਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਸੋ ਆਈ ਵਿਲ ਟੈਲ ਵਾਟ ਅ ਸ਼ੈਲ ਇਜ਼ ਫਸਟ. ਕਿ ਸ਼ੈਲ ਇਜ਼ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਵਿਦ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ. ਬੇਸਿਕਲੀ ਵਿੰਡੋਜ਼, ਲਿਨਕਸ ਜਾਂ ਮੈਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜੋ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਥਰੂ ਕਰਦੇ ਆ. ਠੀਕ ਹੈ. ਨਾਓ Okay. ਜੋ ਬੈਸ਼ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਹਾਊ ਇਜ਼ ਇਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਰੋਮ ਅ ਨਾਰਮਲ ਸ਼ੈਲ? ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੈਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ. ਮਤਲਬ ਬੈਸ਼ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ੈਲ ਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਹਾਊ ਇਜ਼ ਇਟ ਡਿਫਰੈਂਟ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕ੍ਰਿਪਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਬੈਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਕ ਨਾਰਮਲ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਯੂ ਰਾਈਟ ਕਮਾਂਡਸ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆ ਜਾਂਦਾ. ਬਟ ਬੈਸ਼ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੂ ਕੈਨ ਰਾਈਟ ਸਕ੍ਰਿਪਟਸ ਇਨ ਇਟ. ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਟ ਟਰਨ ਇਟ ਟੂ ਅ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਲੈਂਗੁਏਜ ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਜਸਟ ਅ ਸ਼ੈਲ. ਤੋ Okay. ਬੈਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ. ਬੈਸ਼ ਸਕ੍ਰਿਪਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ. ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੇ ਉਹਦੇ ਫਾਈਲ ਦੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਕੀ ਆ. ਠੀਕ ਹੈ. ਲੈਟਸ ਸੇ ਬੈਸ਼ ਹੈ ਫਾਈਲ ਦਾ ਨੇਮ ਅਤੇ ਡੋਟ ਐਸ ਐਚ. ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਸ਼ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਲਿਖਣੀ ਆ ਉਹਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਡੋਟ ਐਸ ਐਚ. Okay. ਠੀਕ ਹੈ. ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਫਾਈਲ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, ਨਥਿੰਗ ਮਚ ਮੋਰ. ਬਸ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਬੈਸ਼ ਦੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟਿੰਗ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਜੇ ਕੋਈ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਲਿਖਣੀ ਉਹਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਡੋਟ ਐਸ ਐਚ. ਠੀਕ ਹੈ. Dot asset message. ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ. ਇਹ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੋਗੀ. ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਯੂ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਇਟ ਐਸ ਸ਼ੈਲ ਆਲਸੋ. ਠੀਕ ਹੈ. ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਕਮਾਂਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਸ਼ੈਲ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਨਲੀ ਇਹ ਐਜ਼ ਅ ਸ਼ੈਲ ਸਕ੍ਰਿਪਟਿੰਗ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ. ਸੋ ਸਕ੍ਰਿਪਟਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਠੀਕ ਹੈ. ਨਾਓ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਬਣਾਉਣੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਈ ਕਮਾਂਡਸ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਕਾਫੀ ਕਮਾਂਡਸ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ. ਤੋ ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਜਸਟ ਰਿਪੀਟਿੰਗ ਦੈਮ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਮਾਂਡ ਨਾਲੋਂ ਸਾਰੀ ਕਮਾਂਡਸ ਰੀਰਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ. Okay. ਓਕੇ. ਸੋ ਉਹ ਕਮਾਂਡਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ. ਐਂਡ ਇਟ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੋ ਨਾਰਮਲ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ. ਓਕੇ. Okay. ਸੋ ਬੈਸ਼ ਦਾ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਬੈਸ਼ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੈਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈ ਕਿ ਬੌਰਨ ਅਗੇਨ ਸ਼ੈਲ. ਇਹਦੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾ ਲਾ ਨਾ ਮੈਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਦੇਣੇ ਹੋਏ ਤਾਂ. ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ. Yeah. ਵਿਦ Born ਗੂਗਲ again. ਡਾਕਸ. Born again. Yeah. I'll keep writing them ताकि ओके. एक चीट शीट में शेयर कर दूंगा दोबारा चो. सो ओके. बैश दी फुल फॉर्म है बॉर्न अगेन शेल. ਇਹਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨਾਮ ਹੈ. Okay. ਓਕੇ. ਲਾਈਕ ਕਈ ਵਾਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਬੈਸ਼ ਦਾ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਐਂਡ ਆਲ, ਤਾਂ ਬੌਰਨ ਅਗੇਨ ਸ਼ੈਲ. Born again shell. ਯੈਸ. ਨਾਓ ਬੈਸ਼ ਦਾ ਮੇਨਲੀ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਕ ਵਾਈ ਬੈਸ਼? ਬੇਸਿਕਲੀ ਬੈਸ਼ ਨਾਰਮਲ ਜੋ ਸ਼ੈਲ ਹੁੰਦਾ ਲਿਨਕਸ ਸ਼ੈਲ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪਲੇਸਿਸ ਲਿਨਕਸ ਸ਼ੈਲਸ. ਠੀਕ ਹੈ. ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਈਕ ਡਿਫੋਲਟ ਸ਼ੈਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਦਾ ਬੈਸ਼, ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟਸ ਵਗੈਰਾ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਐਂਡ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਬੈਸ਼ ਸ਼ੈਲ ਫॉर ਲਾਈਕ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁਣ ਮਾਡਰਨ ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਸ਼ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ. ਯੂਨਿਕਸ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਟ ਰਿਪਲੇਸਿਸ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਐਂਡ ਮੋਸਟ ਆਫ ਇਟ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਦੇ ਲਈ ਬੈਸ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. Okay. ਓਕੇ. ਸੋ ਲਾਈਕ ਹੁਣ नॉर्मल शेल्स, फॉर नॉर्मल शेल्स आपको मतलब पूरा ओदा हो पता होना चाहिए कि हाउ द ओ एस वर्क्स एंड लाइक हाउ यू नीड टू लाइक मैनेज द ओ एस. बट इन बैश लाइक Mhm. you don't need to know the internal working of the OS. Okay. For bash you don't need to know internal working of OS. Okay. now ये सब तो ज़्यादा पॉपुलर है. एक पॉइंट और मोस्ट पॉपुलर ਦੈਨ ਲਾਈਕ ਇਹ ਕਾਫੀ ਜਲਦੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਲਾਈਕ ਅਰਲੀ 2000s ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ. ਅਰਲੀ 2000s ਲਾਈਕ 2000 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਆਈ ਥਿੰਕ. ਸੋ ਯੈਸ. ਇਹ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ ਕੰਪੇਅਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੈਸ਼ ਨੂੰ? ਲਿਨਕਸ ਨਾਰਮਲ ਸ਼ੈਲ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾਰਮਲ ਲਿਨਕਸ ਸ਼ੈਲਸ. ਯੈਸ, ਲਿਨਕਸ ਸ਼ੈਲਸ ਜਾਂ ਜੋ ਨਾਰਮਲ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੈਲਸ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਫॉर ਕਮਿਊਨੀਕੇਟਿੰਗ ਵਿਦ ਓ ਅੱਛਾ. ਐਸ, ਵੀ ਆਰ ਕੰਪੇਅਰਿੰਗ ਇਟ ਟੂ them. like Okay. till now ਠੀਕ it is the most popular shell right now. So yes, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਲਾਈਕ
it is available on the three Unix, like Unix, which is basically Linux, then Windows, Okay. then Mac. तीनात available है. Okay. Okay. Now, a question that might be asked in an interview is के why would you not use Bash? Why Hmm. not Bash? Right? सिंपल क्वेश्चन जो नॉर्मली पूछ लेंगे, मैं पहले आंसर कर देना कि नोट्स बंद रहे, क्योंकि इस बार शायद ज़्यादा लिखना ना होवे. सो बेसिकली ए प्रोग्राम, इट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बट इट लैक्स ऊप्स बाचो. वी विल स्टडी इन पाइथन स्क्रिप्टिंग. ठीक है. Mhm. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ऑब्जेक्ट्स इन यू कैन क्रिएट ऑब्जेक्ट्स एंड ऑल. ਤਾਂ Mhm. basically it lacks oops and it lacks syntax proper. It doesn't have proper syntax. Okay. लाइक ਇਹਦਾ ਜੋ ਸਿੰਟੈਕਸ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹਾਰਡ ਹੁੰਦਾ. ਸੋ ਯੈਸ, Okay. ਇਹ ਦੋ ਰੀਜ਼ਨਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬੈਸ਼ ਚੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ. Okay. ਠੀਕ ਹੈ. ਸੋ ਬੈਸ਼ ਯੂਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ? ਵੇਅਰ ਇਹ ਮੇਨਲੀ ਇਨ ਕਲਾउड फॉर डिप्लॉइंग इन प्रोग्राम्स लाइक वेयर आप कोई पाइथन स्क्रिप्ट लिख दी, एक पाइथन का पूरा प्रोग्राम लिखता. वी हैव अ पाइथन प्रोग्राम एंड वी यूज इट विद दैट. बेसिकली हमें वी हैव टू एग्जीक्यूट पाइथन फाइल्स. आप हमें पाइथन फाइल्स एग्जीक्यूट करनी पड़ती हैं जहाँ पे, तो हम वहाँ पे ये बैश की स्क्रिप्ट लिख देते हैं कि पहले ये फाइल एग्जीक्यूट होगी, ये फाइल एग्जीक्यूट होगी, या कोई कंडीशन लगा देते हैं कि अगर ये कंडीशन है तो ये वाली फाइल होगी. सो वी गो विद दैट. तो it goes with like programs, like projects to execute them, or like anything regarding command line जो होता है, तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ यूज ਹੁੰਦਾ है पूरा. जो भी कमांड्स होते हैं. Yes. Yeah, This yeah, is ठीक है. about bash. This is about bash. About bash. Normally ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ, but yes, नहीं, if बिल्कुल. asked. So we'll तो start मतलब with जैसे bash now. आपके हाँ हाँ. Okay. नॉर्मल जो लिनक्स कमांड है उसकी आपकी और बैश की, तो दे आर दे इक्वल, और जो बैश का कोई अलग से थोड़ा अलग सा फॉर्मेट होता है, अलग सा उनका होता है? नहीं नहीं, मोस्टली थोड़ा बहुत सिंटेक्स अलग हो सकता है, लाइक कमांड्स अलग हो सकती है, बट मोस्ट ऑफ द कमांड्स आर सेम. अच्छा, ठीक है. यस. तो जैसे हम एक तरफ जो लिनक्स चल रही हो, एक तरफ हम नॉर्मल शेल चल रहा हो, एक तरफ बैश चल रहा हो, तो हम देख के डिफरेंशिएट कर सकते हैं भी कौन सी लैंग्वेज चल रही है इसमें, है ना? थ्रू सम कमांड्स, यस. लाइक अगर हम नेट स्टेट, मतलब वो आगे आएंगे कि कुछ नेटवर्क की कमांड्स होगी जो पर ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट हो जाती हैं, हाँ. तो उनसे पता चल Okay. जाता है वो. यस. सो लाइक इन WSL वी से PWD, so it gives this, and if I use it in PowerShell it will do the same. PWD, right? Okay, Yes. okay, In okay. PowerShell it gives it like this, and in WSL it gives like this. That's right. So Okay. you can differentiate. Okay. Okay. So we'll start with normal commands. Okay. और जो कमांड लाइन होती है आपकी, वो भी स्क्रिप्टिंग, शेल स्क्रिप्टिंग होती है एक टाइप की? टाइप ऑफ स्क्रिप्टिंग इज कि आप सारी कमांड्स को एक जगह लिख रहे हो और उनमें कंडीशंस लिख वगैरह रहे हो. लगा रहे हो. ओके. और नॉर्मल कमांड लाइन पहले आई थी, तो इसकी कमांड्स को यूज करके आप एक स्क्रिप्ट लिखते हो. ठीक है. दिस इज व्हाट Okay. हैपेंस. यस. ओके. सो विल गो विद कमांड्स की मैं चीट शीट शेयर कर दूंगा इसके बाद, सो यू कैन यूज दैट. ठीक है. आई विल नॉट मेक अ नोट्स ऑफ दिस. सो विल गो विद द मोस्ट बेसिक कमांड कि आपको कुछ प्रिंट करना है कमांड लाइन में, राइट? सो उसके लिए कमांड होती है एको. एको बेसिकली मतलब ये एको कर रहा है, तो यू कैन अंडरस्टैंड इट लाइक दिस. सो आई विल से एको हेलो. ये हेलो प्रिंट कर देगा. दैट्स इट. ओके. ठीक है. एको के पीछे जो भी लिखोगे वो प्रिंट हो जाएगा कमांड लाइन में. एको गो. सो गो प्रिंट हो जाएगा. और अगर मैं एको 1 स्पेस के साथ भी लिखूंगा वो भी प्रिंट हो जाएगा. तो यस, एको के पीछे जो भी आता है वो प्रिंट हो जाता है. ठीक है. ओके. नेक्स्ट कमांड है, ये मोस्टली कमांड यूज़ नहीं होती है क्योंकि अभी हमारे पास एक नॉर्मल यूज़र इंटरफेस वगैरह होता है. वी कैन क्रिएट फाइल्स लाइक आई कैन क्रिएट new.txt. ओके. And I can write stuff in this like hello world, this is a txt file. ठीक है. बट when these things were like not there, तो हम एक कमांड यूज करते थे vim. Now I'll say old dot txt.
सो व्हाट इट डज इज Okay. के old.txt एक फाइल बना देगी, ठीक है, दिस इज देयर. नाउ आई विल प्रेस आई, I'll enter insert mode and I'll write hello writing using Vim. Okay, so Hmm. I'll exit with I, sorry, Q, no, escape, yes, escape ਨਾਲ exit ਹੁੰਦਾ. ठीक है. Basically I've exited the insert mode. Now I'll press colon, then I'll press W. This will write it into the file. Now if I go, I'll just first quit it. I'll write colon, then Q, it will quit the file. अब old.txt में जो मैंने लिखा था वो आ चुका. उसमें आ जाएगा उसमें. Okay, Yes. okay, 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 okay. Basically Vim creates a file and takes you to a editor जो कि कमांड लाइन में होता है. Editor. ओके, Hmm. और उसमें आप दो तीन चीज़ें करके वो कर सकते हो. नाउ आई विल शो यू व्हाट ऑल देयर आर थिंग्स इन विम. विम्स old.txt में चलते हैं. नाउ दिस इज देयर, ठीक है. आई विल प्रेस आई अगेन. नाउ आई एम इन इंसर्ट मोड. आई कैन इंसर्ट अगेन. आई विल इंसर्ट लाइक हाई. escape से एग्जिट. नाउ डब्ल्यू आर क्यू मेरे को लास्ट टाइम अलग अलग करना पड़ा था, राइट. नाउ इफ आई प्रेस डब्ल्यू क्यू, इट विल डू द होल थिंग अगेन ऑल टुगेदर. Okay. All together. Now if there's a thing like hi, now I want to do something like this. I've edited some stuff. Okay, now I want to exit without it changing. मेरे को like changes नहीं अपने show करने. So I'll say Q exclamation mark Okay. and changes के साथ नहीं हुआ, वो ऐसे सेव कर दिया उसने. Okay, मतलब उसने कैंसिल कर दिया Yes. जो हमने जो भी डाला था. यस, एंड ये आप मोस्ट प्रॉब्ली कहीं पे यूज़ नहीं करोगे इन योर लाइक, जो भी आप करोगे पूरे जर्नी में कहीं पे यूज़ नहीं होने वाला ये, ठीक है. इट इज़ जस्ट देयर इफ समबडी आस्क यू कि होता है तो विम होता है. Vim होता. ठीक है. Yes. Okay. ओके, नाउ अनदर कमांड जो आप यूज़ करोगे इज कैट. एको और कैट आपका थ्रू आउट द लाइक उसमें यूज़ होने वाला है. सो ये दो कमांड्स काफ़ी ज़रूरी होती हैं. सो व्हाट कैट डज इज लाइक, लेट मी जस्ट डेमोस्ट्रेट इट. new.txt. सो जो भी new.txt के अंदर था इट प्रिंटेड दैट. Okay. ये सब था एंड इट प्रिंटेड दैट. बेसिकली एक फाइल के अंदर के कंटेंट को इसमें प्रिंट कर देता है ये, ठीक है. Okay. ये हो सब होता है कैट का काम. नेक्स्ट इज Cat लाइक, का. हाँ, व्हाट इज pwd. pwd इज के आपकी करंट डायरेक्टरी बता देता है कि आप किस डायरेक्टरी में हो, कि आप किस फोल्डर में हो, किस फोल्डर के अंदर है, एंड ऑल दैट. लाइक करंट डायरेक्टरी बता देता है वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक. ओके, देन इज ls. List. ls means list. Basically whatever is under this folder which you are like I'm in teaching folder, so I'll be जो भी इसके अंदर फाइल्स हैं वो सब लिस्ट कर देगा. ओके, नाउ आई हैव समथिंग लाइक ls. आई थिंक l होता है, लेट मी जस्ट चेक. या ls l बेसिकली इट सारी इन्फो दिखा देता है विद. नाउ हियर्स अ थिंग कि आपकी फाइल्स को परमिशंस होती हैं कि डू आई गिव इट एग्जीक्यूशन परमिशन और नॉट, डू आई गिव इट रीड परमिशन, डू आई गिव इट राइट परमिशन, और लाइक तीन टाइप की परमिशन होती है. रीड, राइट, एग्जीक्यूट. Read, Okay. write and execute. Okay. यस, यहाँ पे लिखा है रीड, राइट, एग्जीक्यूट, रीड, राइट, एग्जीक्यूट. ये आपकी परमिशन दिखाता है, ठीक है. लाइक दिस शोज कि कब बनी थी एंड ऑल, कि उसका नाम क्या एंड ऑल. ओके, और लाइक किसने बनाई थी और किसने एडिट करी थी एंड वही. सो यस, दिस इज अबाउट दैट. बेसिकली इसको बोलते हैं लॉन्ग फॉर्मेट. ओके, इसे देन अपना बेसिकली format किसे को बोलते हैं? ls इज लिस्ट, L. That's ls एंड l को बोलते हैं लॉन्ग फॉर्मेट, ठीक okay. है. ओके, लेट्स से वन मोर थिंग कि अब ये तो मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ कमांड्स, बट अगर हमें चेक करना हो कि मैं कौन से शेल में एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, ठीक है. लिनक्स हैज़ मल्टीपल शेल्स. इट माइट नॉट बी बैश शेल, लिनक्स का कोई शेल हो सकता है. तो आपको चेक करना है कि आप कौन से शेल में एग्जीक्यूट कर रहे हो. तो दिस कमांड कॉल्ड शेल. सो वी आर एग्जीक्यूटिंग बैश राइट नाउ. तो ऐसे कंफर्म कर सकते हो आप. Okay. ओके, so I'll start with scripts now. Okay, we have a script called bash.sh echo, and I'll say hello. Okay, I've saved this. Basically normally it would have done using vim, but हमारे पास अब फाइल एडिटर्स वगैरह हैं, तो I'll just use VS Code. Now I'll just go /b. टैब प्रेस करोगे तो ऑटो फिल कर देता फाइल्स का नेम एंड इट विल एग्जीक्यूट.
इट एग्जीक्यूटेड हेलो. नाउ ये है क्योंकि मुझे पता है वी आर यूजिंग बैश, राइट. बट व्हाट इफ वी आर नॉट यूजिंग बैश, सो हाउ टू एग्जीक्यूट यूजिंग, लाइक आप लिनक्स में और आपको पता है कि आप बैश नहीं यूज़ कर रहे हो, तो बैश लिखना है, फिर लिखना है बैश डॉट एस एच एंड फिर बैश एग्जीक्यूट कर देगा. बेसिकली स्पेसिफाई द शेल यू आर गोना रन इट थ्रू. ठीक ओके है. नाउ आपको ये है कि मेरे को ये भी स्पेसिफाई नहीं करना. सो व्हाट मोस्टली इज डन इज बैश स्क्रिप्ट इज कि यू स्पेसिफाई इट इन द स्टार्ट. यू, ये आपको मोस्टली हर उसमें मिलेगा. इट इज एक्सक्लेमेशन स्लैश बिन स्लैश अरे bash, yes. So I'll just go with this. Now it will use bash shell by default. अच्छा, आपने स्पेसिफाई कर दिया बाय डिफॉल्ट ये यूज करना है. हाँ, कि बेसिकली अब यू दिस स्क्रिप्ट हैज़ टू यूज़ बैश शेल, कि किसी और शेल में नहीं. कि तो ये बेसिकली ये वाली जो चीज़ होती है आपको लिखनी नहीं पड़ेगी, यू कैन जस्ट डायरेक्टली एग्जीक्यूट इट और वो बैश शेल में ही चलेगी. ओके. ओके. और किस टाइप के होते हैं नवदीप, जैसे अगर बैश नहीं करेंगे तो और कौन सा शेल होता है? लिनक्स लिखोगे Basically- में क्या लिखोगे? ये रहे आपके बेसिकली जैसे उबुंटू का डब्ल्यू एस एल हो गया, सी एम डी हो गया, गिट बैश, गिट तो गिट का बैश, ये पावर शेल हो गया, Git ये का सब हो गया. विंडोज़ के होते हैं. ओके. विंडोज के हैं बैश. लिनक्स के और होते हैं, आई जस्ट फॉरगॉट द नेम, बट यस काफ़ी होते हैं. ओके. ये Yes. विंडोज के यही हैं जो ऑप्शन है. हाँ मोस्टली पावर शेल जो हो आप, गया, कमांड हाँ प्रॉम्प्ट हो गया. यस, पावर शेल और कमांड प्रॉम्प्ट आपके पास होते हैं ऑलरेडी बिल्ट इन, और हम डब्ल्यू एस एल डाल लेते हैं. ठीक है. और लिनक्स में भी 2-3 होते हैं, तो यस, और आप यूज़ कर सकते हो, अलग से भी होते हैं. जैसे मैंने इस यहाँ पर इको हेलो को पावर शेल में चलाना है, तब डैश पावर शेल डाल दोगे इसमें? पावर शेल में आई डोंट थिंक सो एको चलता है. कैन टेस्ट एको हेलो चलता है. ओके. चला. तो बेसिकली पावर शेल तो डाल मैं देते हैं. specify- यस, पावर शेल का हाँ. टाइप होता है .ps1. ओके. PowerShell bash .sh. Let's see. We'll have to remove this. चल जाना चाहिए. बेसिकली पावर शेल नहीं है WSL में, तो ये दिक्कत है मेन, तो कि WSL आपके पावर शेल के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता. बट आई थिंक Communicate नहीं कर सकता. इट कैन डू दैट. इसको बैश नहीं पता. यस. तो बैश नहीं पता. ओके. तो बेसिकली WSL हमने अलग से इंस्टॉल करा है, तो वो इसलिए बैश यूज़ कर पा रहा है. तो मैंने इसके लिए बैश अभी डिफाइन नहीं करा है, तो बैश नहीं यूज़ कर पा रहा है. यस. ओके. 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 Okay, so this is start. Okay, now what we have is कि yes, हाँ, I was with the list, right? So ये this is how you script. आपको एक फाइल बनानी है, उसमें आपको जो भी कमांड्स एग्जीक्यूट करनी है वो आपको उसमें लिख देनी है, and it will execute. Okay, so sometimes you might face an error कि you can't execute this file. ठीक है, कि आपके पास ये एग्जीक्यूशन की परमिशन नहीं होगी. So what you just need to do is you need to use a command called chmod. It updates the permissions of the files. Okay, so I write u plus x. It means updation plus execution for a file name bash.sh. Now my file will have, let's say, like it has the same priorities and all, but same priorities हैं अभी भी इसकी, क्योंकि इसके पास पहले से सारी permissions थी. बट अगर नहीं होती तो यहाँ पे x आ जाएगा. x means execute, w means write, r means read. रीड है ना, तो अभी तो सारी परमिशन है इसके पास, राइट? हाँ, क्योंकि मैं बाय डिफॉल्ट मेरे पास मतलब सारी फाइल्स के पास रीड राइट और एग्जीक्यूट आ जाता है. ठीक है, बट इन सम ओके. ये केसेस 3 बार इतने बार के लिखा हुआ है इतने, रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड वो राइट इसका फॉर्मेट है एग्जीक्यूट, बेसिकली. इसी का इसका फॉर्मेट ही है कुछ. ठीक है, ओके. बट बेसिकली इट मीन्स कि आपके पास सारी परमिशंस हैं अभी के लिए. ओके, तो जनरली आप अगर इसको रीड करना है इस फॉर्मेट में, तो हमें रीड राइट एग्जीक्यूट बस 3 चीजें हैं, तो ठीक है. यस. और 3 बार ही लिखेगा ये, हाँ, है ना? मोस्टली. अच्छा. ओके. 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 तो आपके पास अभी तीनों परमिशंस हैं. बट अब जब आप क्लाउड पे डिप्लॉय करने जाओगे या AWS पे डिप्लॉय करने, कहीं पे भी आप डिप्लॉय करने जाते हो, ठीक है, तो यू माइट नॉट हैव द परमिशन. सो आपको chmod की यूजिंग आपको उसे बेसिकली परमिशंस मॉडिफाई करनी पड़ सकती हैं फाइल्स की. ओके. So it will basically give an error. I'll just try. Okay, I think minus chmod यू लगाना ही लगाना, यू मतलब अपडेशन. Yes, let's test. अब क्या है? अभी भी एग्जीक्यूशन परमिशन नहीं है. आई थिंक कुछ होता था.
हाउ टू रिमूव अ परमिशन बाद में देख लेंगे, बट बेसिकली ये अभी देख ही लेते हैं. लेट्स सी हाउ टू रिमूव परमिशन फ्रॉम अ फाइल यूजिंग chmod. यूज माइनस ऑपरेटर. माइनस सेक्सी होना चाहिए. माइनस कर दिया. ओके. I did the same. Let's see. अभी भी है, अभी भी है. It is executing. Read write execute यही है. File name. ये देखना पड़ेगा, बाद में देखता हूँ. ठीक है, तो बेसिकली होता यही है. यस. ओके, तो दिस इज़ बेसिकली कि आपको एग्जीक्यूट कैसे करना है सब कुछ. ठीक है, नाउ विल जस्ट स्टार्ट विद बेसिक स्क्रिप्टिंग. सबसे पहले अगर आपको कोई स्क्रिप्ट लिखनी है तो यू विल हैव टू डिफाइन वेरिएबल्स. ठीक है, सो व्हाट आर वेरिएबल्स. फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन व्हाट वेरिएबल्स आर. वेरिएबल्स के आप कुछ नहीं, आपने एक वेरिएबल बनाया. ठीक है, लेट मी मेक अ वेरिएबल ए, और इसमें मैंने एक वैल्यू स्टोर कर दी हेलो. ठीक है, नाउ मैं जहाँ पे भी ए यूज़ करूँगा उसकी वैल्यू हो जाएगी हेलो. हेलो. ओके. एको एड ए. ठीक है, लेट्स से ओके. अब इसने हटा दी उसकी परमिशंस. यस, अब इसकी परमिशंस हट चुकी हैं. नहीं मतलब कोई प्रोपेगेशन टाइम है इसका, थोड़ा टाइम लेता है चीज़ में. आई डोंट नो, या तो पहले है एक ना? बार एग्जीक्यूट हो चुकी थी और एक बार वो हो चुकी थी, तो तब होगा. बट यस, आपने कौन सी यूज की थी कमांड? सी एच मोड माइनस एक्स आपने प्लस माइनस एक्स, इसमें यू नहीं डाला आपने इस बार, है ना? यू बेसिकली अपडेशन होता है कि आप उस अपडेशन को भी एक परमिशन ही है. जैसे मैंने प्लस ओके. करा, अब हो जाना चाहिए. ओके, तो जस्ट अ मिनट, मैंने वो कर दिया. कमांड नॉट फाउंड. कौन सी कमांड नहीं मिली इसे? ए इज इक्वल टू हेलो. ए कमांड नॉट फाउंड. ओके, वेरिएबल तो ऐसे डिफाइन करते थे जितना मुझे याद है. नहीं, उसकी गलती नहीं है, वो चल ही रहा था. वेरिएबल गलत डिफाइन कर दिया हमने. ये होता था क्या? सच फाइल और डायरेक्टरी. यस, ये तो फाइल और डायरेक्टरी के लिए होता था. नहीं, काफ़ी टाइम हो गया बैश यूज़ किया. इट्स ओके. ओके, हो जाता है. मुझे लगता है वो होता नहीं, इन्वर्टेड कॉमर्स वगैरह तो नहीं. नहीं 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 नहीं, सीधा ही है ना ये, इसमें कुछ सेम ही है. फॉर्मेटिंग. यस, अच्छा उसने कर तो रखा है. आई थिंक इसमें नोटेड को मिल लगेगा. नहीं, ये अभी भी नहीं मिल रहा. को नेम आई थिंक मेरे को उसके सामने डॉलर लगाना पड़ेगा. ऐसे होता है. अब चल जाएगा. नहीं, नहीं, इक्वल टू नहीं लगेगा इसके साथ. फिर जस्ट अ मिनट में बात कर लूँ एक बार, घर से कॉल आ रहा है. हाँ जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. हाँ मम्मी. 7:30 तक हो गए. ਉੱਠ ਜਾ. हाँ मैं उठे हुए, ਹੁਣ ना फोन ले. ਚੰਗਾ, ਮੈਂ ਨਾ
ये लेट्स सी, यूज़ तो हम यही कर रहे हैं, वेरिएबल नेम वैल्यू। आई थिंक स्मॉल में होगा, फिर मेन दिक्कत ये हो सकती है। हाँ, नेमिंग सेंस की दिक्कत हो सकती है। नहीं, ओके, यस, ओके। तो दिक्कत थी कि यहाँ पे इक्वल टू और उसमें स्पेसेस नहीं देने होते। सो पाइथन में और नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है, आपको स्पेसेस कोई दिक्कत नहीं देते कि जितने मर्जी स्पेसेस दे दो, कहीं पे भी दे दो। बेसिकली बस आपको जैसे यहाँ पे स्पेस नहीं देना है, बट यहाँ पे जो हमारे पास बैश है, इट इज़ स्पेस सेंसिटिव। ओके, ओके, तो अगर मैं यहाँ पे ये दे देता हूँ तो इट कंसीडर्स ए एज अ कमांड, नॉट एज अ वेरिएबल। ऑल्सो वेरिएबल, ओके। ठीक है, बेसिकली तो स्मॉल एक जैसे अब एको एक कमांड है, ठीक है। अब इसको कैसे पता चलेगा एको एक वेरिएबल नहीं है और एक कमांड है? तो बेसिकली इनको इन्होंने सेपरेट नहीं करा। ये को अगर मैं ए के बाद इक्वल टू लगा देता हूँ तो अब ए एक वेरिएबल है, और अगर मैं इसको सेपरेट Okay. कर देता हूँ तो अब ए एक कमांड है। ओके 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 ओके, अब मैंने यहाँ पे इक्वल टू साथ में लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इक्वल टू लगा दिया, अब यहाँ पे मैंने लगा दिया स्पेस डाल दिया। अब ये इसको एक अब देयर इज अ थिंग कॉल्ड पोजिशनल आर्गूमेंट, मैं इसके बाद बताता हूँ क्या होता है, ठीक है। नाउ इट टेक्स हेलो एज अ पोजिशनल आर्गूमेंट, ठीक है। तो मेरे को इनको साथ में लिखना पड़ेगा, पर मैं स्पेस डाल के लिख सकता हूँ, शायद ये नहीं लिख सकता। तो बेसिकली अगर मैं को वो स्पेस डाल के लिखना, आई थिंक उसका वो होता है, विल चेक, उसके लिए लिस्ट होती है, या मेरे को ये यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। हेलो ए। अब ये चलेगा हेलो ए। अगर मेरे को स्पेस देनी है तो आई यूज़ इन्वर्टेड कॉमर्स, और बेसिकली नहीं तो मेरे को अलग अलग चीज़ें स्टोर करनी है, तो मैं एक लिस्ट बनाऊंगा विच आई एक्सप्लेन के लेटर, ठीक है। तो बेसिकली मैंने एक वेरिएबल बनाया अभी। अब वेरिएबल मैं इसकी वैल्यू कहीं पे भी चेंज कर सकता हूँ। ए आ गया, अब मैंने इसकी वैल्यू चेंज करनी है, ए इज इक्वल टू, मैंने इसकी वैल्यू कर दी एल, अब मैंने को कर दिया जस्ट एग्जीक्यूट दिस। अब मेरे पास एल आ गया। अब इसकी मैं वैल्यू किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे चेंज कर सकता हूँ, और उसकी वैल्यू स्टोर करके मैं प्रिंट या कुछ भी उसके साथ जो भी मेरे को करना है वो कर सकता हूँ मैं, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट वेरिएबल्स आर, ठीक है। नाउ मैंने आपको एक प्रिंट करने की कमांड बता दी, ठीक है। मैंने आपको वेरिएबल्स की कमांड बता दी। अब आपको रीड की कमांड चाहिए, राइट। सो लेट्स से मैंने करता हूँ रीड। अब मैं पहले इसमें एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ, रीड। अब मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करूँगा तो ये इनपुट लेता है यूज़र से, ठीक है। बेसिकली आपकी कमांड लाइन में आपको कुछ यूज़र से इनपुट करवाना है, सो इट इज़ डन यूजिंग रीड, ओके। सो आई रीड, आई थिंक इट वाज डॉलर ए, दिस इज हाउ इट शुड। तो जो सी वैल्यू है रीड करके वो डॉलर ए में डाल दे वैल्यू, है ना। सो आई विल से दिस, नहीं, हाउ वाज दिस, लेट्स से ए is equal to nothing, नहीं ऐसा नहीं था इसका। ओके, I'll check read syntax now. मेरे पास इस पे पड़ा होगा, reach control F, read। रीडर के सीधा ही इन्होंने वेरिएबल नाम लिखा हुआ है, जैसे रीड डैश पी एंटर योर नेम, फिर ओके, अपना हाँ, दैट माइट बी द फिर नेम। केस। यहाँ पे मैं सीधा अगर ए लिख देता हूँ तो माइट वर्क, या वर्क्स। यस, तो बेसिकली यहाँ पे एट द रेट मतलब सिर्फ उसकी वैल्यू एक्सेस करने के लिए यूज़ करना है। अगर उसमें कुछ भी स्टोर करना है तो वी डोंट यूज़ एट दिस डॉलर साइन, ओके। ओके, सो दिस इज़ रीड। नेक्स्ट वी कम टू पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स। जो मैं बोल रहा था कि अगर मैं इसको स्पेस दे देता हूँ तो इसको ये एज अ पोजिशनल आर्ग्यूमेंट लेगा, राइट।
व्हाट आर पोजिशनल आर्गूमेंट्स और लाइक इनकी सिग्निफिकेंस क्या होती है, ठीक है। लेट्स से आई विल गो विद एको, ठीक है। उसके बाद मैं लिखता हूँ ए बी बी बी, ठीक है। तो इसने वो प्रिंट कर दिया। अभी इसके लिए एको एक पोजिशनल आर्गूमेंट है 0, ठीक है। उसके बाद इसके पास ए बी 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 है, ये है पोजिशनल आर्गूमेंट 1, पोजिशनल आर्गूमेंट 2। नाउ पोजिशनल आर्गूमेंट 0 बेसिकली जो 0 पोजीशन पे स्पेस से पहले अलग, ये स्पेस से सेपरेट होते हैं आर्गूमेंट्स। अब स्पेस से सेपरेट हुआ तो ये पहला है, तो बेसिकली इसमें नंबरिंग 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है। इन स्क्रिप्टिंग एंड प्रोग्रामिंग वी स्टार्ट विद 0 देन 1 एंड 2। सो दिस इज पोजिशनल आर्गूमेंट 0 एंड बेसिकली 0 मोस्टली हमेशा कमांड्स को डिटरमाइन करती है कि आपकी जो 0 पे आर्गूमेंट होगी, पोजिशनल आर्गूमेंट 0 होगी, इट इज़ एन कमांड, ठीक है। शेल कमांड्स और जो भी है आपका, अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू लगा देता तो वेरिएबल डिफिनेशन वगैरह वो भी एक काइंड ऑफ कमांड की तरह ही ले लेता है, ठीक है। सो दिस स्टार्ट्स इट विद लाइक दिस इज अ कमांड। अब वो कमांड को क्या क्या यूज़ करना है, तो इट टेक्स दिस। नाउ इस कमांड को मैंने ये पास करा, सो उसके लिए पोजिशनल आर्गूमेंट्स हो गए, ठीक है। अब मैं कैट में फाइल का नेम पास करता हूँ, तो कैट के लिए वो पोजिशनल आर्गूमेंट हो गया, ठीक है, कैट। अब लेट्स से मेरे को पोजिशनल आर्गूमेंट लेना है, आई विल गो विद दिस echo डॉलर, आई विल गो 1 $2, ठीक है। मैं इसका मतलब है कि मैं पोजिशनल आर्गूमेंट 1, पोजिशनल आर्गूमेंट 2 को मैं प्रिंट कर रहा हूँ। लेट्स से ./bash, आई से माई नेम, इसने प्रिंट कर दिया माई नेम। सो अगर आपको अपने कमांड लाइन से कुछ इनपुट लेना है, ठीक है, एंड यू वांट टू प्रिंट इट, या उसके साथ आपको कुछ भी ऑपरेशंस करने हैं, सो यू विल यूज़ समथिंग लाइक कि आपने उसको पोजिशनल आर्गूमेंट दे दिया और आपने उसे लाइक बस एज अ पोजिशनल आर्गूमेंट पास करवा दिया। दिस विल बी यूज्ड इन क्लाउड, कि आपके पास कुछ फाइल है और आपको दूसरी फाइल में पास करना है या ये सब चीज़ें, सो यू कैन यूज़ दिस थिंग, और यू कैन डायरेक्टली एक्सेस दैट फाइल ऑल्सो। बट आपको कुछ स्पेसिफिक चीज़ें पास करने तो आप इसी तरह से पोजिशनल आर्गूमेंट से भी पास कर सकते हो, ठीक है। ओके, इसका फिर से एग्जांपल बताओगे नदीम? थोड़ा सा ये थोड़ा ट्रिकी लगा हमें। ओके, सो बेसिकली आपके पास एक स्क्रिप्ट है, ठीक है। इट टेक्स समथिंग एज एन इनपुट, लाइक आई हैव टू से कि सिंपल स्क्रिप्ट दैट टेक्स इन माई नेम एंड प्रिंट्स इट, ठीक है। ठीक है। सो यू विल नीड टू पास ऑन दैट नेम, ठीक है। आइदर इट कैन बी 1 और 2, सो आई जस्ट $1 रिप्रेजेंट लाइक माई फर्स्ट आर्गूमेंट, दिस रिप्रेजेंट माई सेकेंड आर्गूमेंट, ओके। सो माई फर्स्ट आर्गूमेंट इज माई, सेकेंड आर्गूमेंट इज नेम। सो मैंने पास करा के प्रिंट करा दिया। नाउ इसका यूज केस इज के आपको कुछ स्क्रिप्ट है, आप इसको कहीं और से एग्जीक्यूट करवा रहे हो, राइट। आपको ये स्क्रिप्ट भी किसी दूसरी स्क्रिप्ट से एग्जीक्यूट करवा रहे हो और आपको कुछ पास करवाना है। आइदर यू कैन रीड इट इनसाइड द स्क्रिप्ट, अगर आपने कुछ बना रखा है, ठीक है, आपने कुछ फाइल बना के उसको रीड कर लिया, और यू कैन जस्ट पास इट एज एन आर्गूमेंट, पोजिशनल आर्गूमेंट, कि मान लो यहाँ पे मैंने एक स्क्रिप्ट बना रखी है प्रिंटिंग माई नेम, मैं इसको दूसरी स्क्रिप्ट से एग्जीक्यूट करवा रहा हूँ, ठीक है, जो मेरा नेम रीड कर रही है, ठीक है। तो मैं उससे इसको पोजिशनल आर्गूमेंट पास करूंगा और ये प्रिंट कर देगा, काइंड ऑफ अ सिंपल एग्जांपल। ओके, जैसे नदीप नॉर्मल अपना अब एग्जांपल पता कौन सा यूज कर रही यहाँ पर? अपना वेरिएबल में नाम डालो किसी में 1 और 2 का, मतलब हमें उस चीज समझाओ। मतलब ये इको के साथ जो 1 और 2 लगा, ये एज अ वेरिएबल काम कर रहे हैं अभी तक? यस, ये बता रहे हैं पोजीशन काम कर रहे हैं। बेसिकली 1 यहाँ पे माई रिप्रेजेंट कर, आप बैश दिया, ठीक है, बैश आपका पोजिशनल आर्गूमेंट 0 हो गया, ये कमांड है, ठीक है, कमांड हो गया आपके लिए, हाँ। ठीक है। अब इसके बाद मैंने माई दिया, अभी इससे अगर मैं मान लो यहाँ से 1 और 2 हटा देता हूँ, यहाँ पे नवदीप लिख देता हूँ, ठीक है, ठीक है, एन ए लिख दिया मैंने, और मैं सेम चीज़ एग्जीक्यूट ठीक है। करता हूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ता मेरे को, ये चीज़ों नहीं को पता, हाँ। डिसरिगार्ड कर देता है। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ $1, ठीक है। सो ये सिर्फ माई प्रिंट करेगा, मतलब इसने सिर्फ पहली आर्ग्यूमेंट ली, ये 0 है, ये 1 है, ठीक है। अब 1 इसने लिया यहाँ से, अब 1 इज काइंड ऑफ अ वेरिएबल जो आप पास कर रहे हो थ्रू अ कमांड लाइन, जहां से आप इस फाइल को एग्जीक्यूट कर रहे हो, ठीक है, ठीक है। समझ सो गया। इसको एग्जीक्यूट करते मैंने ये पास करा, अब इसने इसे लिया, इसके साथ जो भी हाँ, इसने ऑपरेशन करना था, अभी और भी ऑपरेशन होंगे, ठीक है, जो मैंने लाइक आपने फाइल का नेम पास कर दिया इसके थ्रू, ठीक है। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि इस फाइल की परमिशन मॉडिफाई कर दो, तो आपने इस पर chmod चला दिया, ठीक है। तो इन सब है। चीज़ों की आपने स्क्रिप्ट लिख रखी है और उसमें आपने वो चीज़ें पास करवा दी। सो दिस इज व्हाट यू डू, दिस इज Okay. व्हाट पोजिशनल। मान लो आपको कुछ फाइल ही रीड करनी है, राइट, आपको एक आपने स्क्रिप्ट लिखी, इट रीड्स द फाइल, ठीक है, उसके कंटेंट फिल्टर आउट कर देती है, कुछ भी कर देती है, ठीक है।
सो यू विल टेक दैट फाइल नेम एज एन इनपुट, राइट, कि आपको कौन सी फाइल चेंज करनी है या कौन सी फाइल रीड करनी है. तो यू विल पुट इट इन एन पोजिशनल आर्गूमेंट. ठीक है, आपने इसे 1 पे प्लेस करा, आप $1 यूज करोगे, आपके पास फाइल का नेम आ जाएगा. ठीक है, अब आपको ठीक है। उसके पास जो भी ऑपरेशन करना है आपने कर दिया. ओके यस, अब ठीक है, ओके क्लियर. हाँ ठीक है, क्लियर या यस, अब लेट्स मूव ऑन. ये बस बेसिक स्क्रिप्टिंग हो गई. अब हम लाइक थोड़े से अच्छी चीज़ें करते हैं. ओके, सो जिससे मेनली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यूज़ में. अब होती है पाइपलाइनिंग. ठीक है, पाइपिंग, वी कॉल इट पाइपिंग. ठीक है, व्हाट बेसिकली इज पाइपिंग. लेट्स से ls, आई हैव l, वी हैव bash.sh, वी हैव वॉट एवर वी हैव. ठीक है, मैं चाहता हूँ मेरे को सिर्फ ये दिखे, मेरे को सिर्फ bash.sh फिल्टर आउट करना है. ठीक है, मेरे को सिर्फ वो चीज़ें फिल्टर आउट करनी है जिसमें बैश चीज़ आ रही है. ठीक है, तो मेरे पास ls l, मेरे पास इसका आउटपुट है अभी. ठीक है, ऐसे मैं लिखूंगा तो मेरे पास ये आउटपुट आएगा जो कि ठीक है। फाइल्स के नेम एंड ऑल है. ओके, नाउ आई विल पास दिस. दिस इज द थिंग दैट आई यूज्ड इन बिटवीन. दिस इज कॉल्ड अ पाइप. ठीक है, वी कॉल दिस अ पाइप. Okay, now I'll pass it another command, grep, and I'll say bash. So इसने bash को रेड कर दिया. ठीक है, और आपकी इस चीज़ में bash था तो इसने bash रिटर्न कर दिया बस. Now what grep is basically, यहाँ पे आप basically grep नहीं यूज़ करोगे, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो. ठीक है, मान लो I'll say ls l and I say echo. अब ये सिर्फ प्रिंट कर देगा, कुछ नहीं प्रिंट करेगा. ठीक है, अब LSL echo $1 नहीं, इसका क्या होता था, echo में इसको एज अ डॉलर ट्रीट करना पड़ता है, समथिंग होता था इसका. बट बेसिकली इसने यहाँ से जो भी आउटपुट लिया, ठीक है, उसने ग्रेप को पास कर दिया. आई से ग्रेप बैश, राइट, आई से ग्रेप, हमारे पास new.txt, आई थिंक इसमें काम कर देना चाहिए. we'll say AA and new.txt echo. ऊपर वाले में echo लिखना है, रुक जाओ. नहीं, इसने वो प्रिंट कर दिया. ओके, अच्छा, ये 2 स्ट्रिंग्स लेता है. ओके, AA in AA, नो सच फाइल और डायरेक्टरी ही ले रहा है, तो इसमें AA नहीं है. ओके, यस, मैं सही कर रहा था. सो बेसिकली उसने वो उसे अंडरलाइन कर दिया, दैट्स ऑल. ठीक है, अगर मैं इसमें न्यू लाइन लिखता तो वो सिर्फ यही लाइन प्रिंट करता जिसमें A है. तो बेसिकली ग्रेप का काम होता है कि फिल्टर कर देना अगर हमसे कोई वर्ड देते हैं. सो यू डोंट नीड टू यूज़ ग्रेप हेयर. यहाँ पे बस बेसिकली मेरा काम था कि आपको पाइपलाइन समझाऊँ. ठीक है, सो आई विल यूज दिस एंड अगेन ग्रेप. आपको चाहिए कि आप सिर्फ .txt फिल्टर आउट कर लो. ठीक है, तो आपने सिर्फ .txt, हाँ, तो फिल्टर आउट कर लिया. ठीक है, नाउ बेसिक कमांड इज क्या, बेसिक इसका क्या है कि पाइपलाइन क्या करती है, यहाँ से आउटपुट लेती है, इसको फीड कर देती है, इसको फीड कर दिया. ठीक है, इतना ही काम है इसका. ठीक है, और पास ऑन करके आप दो कमांड एक साथ चलानी है आपने, तो उस करके 2 कमांड आपको 3 कमांड चलाने, 3 भी चला सकते हो, ऐसा कोई सीन नहीं है. अब मान लो मैंने लगा लिया grep.txt, अब मैं इस पे वापस एक लगा देता हूँ, सिर्फ वही txt फाइल जिसका नाम में आता है न्यू grep new. ठीक है, ठीक है. अब ये कमांड ली इसने, अब इसने आगे वाले को पास ऑन कर दी. अब यहाँ पे old.txt और new.txt में से न्यू इसको इसमें मिल गया, तो इसने न्यू अंडरलाइन कर दिया और आपको रिटर्न कर दिया. ठीक है, यू कैन कीप पासिंग इट ऑन, वो पीछे वाले का आउटपुट आगे वाले को पास कर देगा. ठीक है, ठीक है, ओके. नेक्स्ट इज वी विल गो विद आउटपुट ट्री डायरेक्शन, जो मैं करने वाला था. यस, ओके, आई हैव से echo, आई विल से हेलो, एच ई कर देते हैं. ठीक है, अब मेरे को ये चाहिए कि मैं ये चीज़ मैं कमांड लाइन पे लिख रहा हूँ पर इसका यूज़ क्या है. ठीक है, अगर मैं कुछ लाइक यहाँ पे करता हूँ, ये कुछ टाइम बाद चला जाएगा, आई वोंट हैव इट स्टोर्ड. अगर आपको बेसिकली लॉगिंग करनी है, लॉगिंग इज आपको कुछ स्टोर करनी है चीज़ें, आपको बाद में 1 घंटे बाद आके देखना है कि क्या क्या एग्जीक्यूट हुआ. ठीक है, मान लो आपने बहुत बड़ी स्क्रिप्ट लिख दी. ठीक है, वो 1 घंटा चल रही है,
पर आपको ये जानना है कि हुआ क्या उस 1 घंटे में. सो यू विल मेक लॉग्स, राइट. लॉग्स में इसलिए आप उसे किसी जगह स्टोर करा दोगे कि क्या क्या हो रहा है. अब आप एको करोगे तो कमांड लाइन में आता तो रहेगा, बट फिर वो एक हैसल हो जाती है कि आप उसे स्क्रॉल करते रहो और वो कुछ टाइम बाद चला भी जाएगा, कहीं पे स्टोर नहीं होता वो. ठीक है. सो वी विल डू इज आउटपुट रीडायरेक्शन. ठीक है. सो लेट्स से एको एच. अब इसका आउटपुट मैं चाहता हूँ कि कमांड लाइन की जगह कहीं और चला जाए. सो आई यूज दिस एंड आई नेम h.txt. इसने ये बना दिया, कोई नहीं. इसने ये फाइल बना दी. ठीक है. और इसमें इसने h लिख दिया. ठीक है. ठीक है. अब मैं ये लिखता हूँ, इसकी जगह मैं कर देता हूँ a. अब इसे ओवर कर देगा. बट आप चाहते हो कि मैं तो ये कमांड बार बार एग्जीक्यूट करूँगा. ठीक है. आई डोंट वांट इट कि ये ओवर करे. मैं चाहता हूँ कि मैंने पहली बार h आया था और दूसरी बार आया था, मेरे को दोनों रिकॉर्ड करने हैं, है ना. सो दे मेड दिस डबल लेस देन ग्रेटर देन वट एवर दिस साइन इज. सो यूज दिस और इसमें आ गया a और h. ठीक है. तो ये ओवरराइट नहीं करता है. तो बेसिकली आपने करा क्या है इसमें, द टर्म इज आउटपुट रीडायरेक्शन. तो आपने यहाँ से आउटपुट लिया, इस फाइल में रीडायरेक्ट कर दिया और इसमें स्टोर कर दिया. इसको हम बोलते हैं आउटपुट रीडायरेक्शन. ठीक है. आउटपुट रीडायरेक्शन. ठीक है. यस. अब इसके यूज केसेस क्या है, लॉगिंग और डायनेमिकली क्रिएटिंग फाइल्स. आपको लाइक फाइल्स बनानी है, आपके पास एक टेक्स्ट पड़ा है और उससे आपने फाइल्स बनानी है, तो आप ये सब चीज़ें कर सकते हो इससे. ओके. ठीक है. दीज आर द यूज केसेस. नाउ वी हैव इज अब आपने बोला आप मैंने एक साइड की तो देख ली, अगर मैं इसको दूसरी साइड कर दूं, लेट्स से क्या होती कुछ कमांड, लेट्स यूज wc. ठीक है. अब मैंने दिया यहाँ पे वर्ड. अब लेट्स यूज new.txt. new.txt 7. ओके. सो इसने क्या करा, ये फाइल में 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड्स थे, राइट. तो इसने ये फाइल का जो भी कंटेंट था इसको दे दिया. वर्ड काउंट को क्या करता है, वर्ड काउंट आपके जो भी चीज़ होती हैं, ठीक है, उस जो भी आप यहाँ पे स्ट्रिंग दोगे इस जगह पे, उसमें से वर्ड काउंट कर देगा कितने वर्ड्स हैं उसमें. ठीक है. ठीक है. अब मेरे को पता है मेरे पास एक फाइल पड़ी है. ठीक है. मेरे को फाइल का आउटपुट चाहिए. मैंने फाइल का आउटपुट लिया, फाइल का आउटपुट यहाँ पे रिडायरेक्ट कर दिया इस साइड को, और इसने वो चीज़ ले लिया और इसने उसका आउटपुट दे दिया. दैट्स ऑल. ठीक है. वर्ड काउंट डैश w है ना. वर्ड काउंट डैश w का मतलब क्या हाँ, ये बेसिकली वर्ड काउंट के लिए होता है. आपको ये कमांड याद रखने की भी जरूरत नहीं है. मैं आपको पूरी एक चीट शीट दे दूंगा. ये चीज़ है मेरे पास पूरी अभी. ठीक है. तो ये आप एक बार गो थ्रू कर लेना. तो कमांड्स आपको पूरी इसमें मिल जाएंगी मोस्टली सारी. ओके 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 ओके. तो आपको मतलब मोस्टली कमांड्स हैं इसमें जितनी मैंने देखी थी. सो वी आर हियर. यस. ओके. ये चीज़ हो गई. वी मूव ऑन टू टेस्ट नाउ. ठीक है. व्हाट इज टेस्ट. आपको मान लो कुछ चीज़ है कि मेरे को नाम प्रिंट करना है. अगर उसने पोजिशनल आर्गूमेंट सिर्फ नवदीप पास करा, लेट्स से वी आर इन बैश. ठीक है. मेरे को यहाँ पे प्रिंट करना है नेम. नेम बेसिकली मेरे को पोजिशनल आर्गूमेंट प्रिंट करना है $1. ठीक है. अब मैं चाहता हूँ कि ये सिर्फ तभी प्रिंट हो जब ये इक्वल टू n हो. नवदीप इतना बड़ा तो नहीं लिखते हैं. लेट्स रेदर देन, उससे पहले सिर्फ टेस्ट ही समझाना था ना, ये तो इफ एल्स में आ जाएगा. टेस्ट इज मेरे को मतलब चेक करना है कि एक वैल्यू दूसरे से इक्वल है कि नहीं है, या उससे छोटी है, उससे बड़ी है एंड ऑल. ठीक है. सो हाउ डू आई डू दैट. ये अब जब आप 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाओगे इसे बोलते हैं टेस्ट. ठीक है. करने के लिए वैल्यू. ओके. हाँ. ठीक है. पहले मैं इसके लिख देता हूँ एको, जो इसका आउटपुट दे देगा. ठीक है. आई विल गो 1 इक्वल टू 0. इसका आंसर आएगा 1 इक्वल नहीं. लेट मी टेस्ट. कमांड नॉट फाउंड. स्पेसेस एको $? ओके. सो इट गिव्स 0. अगर मैं इस पे लिखूँ 1 इक्वल टू 1, ये 1 देगा, ये भी 0 दे रहा. बेसिकली इट इज़ नॉट टेकिंग इट एज अ कंडीशन. अगर मैं स्पेसेस दे दूँ तो चलेगा शायद. फिर यहाँ पे 0 आना चाहिए
क्योंकि मुझे फॉल्स चेक कराना है. यस. ओके. सो दिस इज 1 इक्वल टू 1. दिस इज ट्रू. ओके. सो द आउटपुट इज 0. ठीक है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डज दिस कमांड डू. मैंने एको डॉलर क्वेश्चन मार्क यूज़ करा. ठीक है. तो ये क्या करता है. डॉलर क्वेश्चन मार्क इस के आपने जो लास्ट कमांड एग्जीक्यूट करी विच इज़ दिस, इसका आउटपुट क्या था वो दे देता है. ठीक है. एको आपका आउटपुट प्रिंट करने के लिए यूज़ होता है, राइट. बट अब ठीक है. ये चीज़ का आउटपुट मेरे को अब प्रिंट नहीं करेगा. इसका आउटपुट कुछ ना कुछ तो होगा, पर मैंने प्रिंट नहीं करा. ठीक है. तो मैंने इसकी जगह डॉलर क्वेश्चन मार्क यूज़ कर लिया कि जो लास्ट कमांड का आउटपुट था वो प्रिंट कर देगा. ओके. ठीक है. तो ये डॉलर क्वेश्चन मार्क इज फॉर द लास्ट कमांड का आउटपुट प्रिंट करने के लिए. अब लास्ट कमांड क्या आती है यहाँ पे. 1 इक्वल टू 1. यहाँ पे स्पेसेस नेसेसरी. अगर आप स्पेसेस नहीं देते तो वो उसे नहीं लेगा. ठीक है. स्पेसेस नहीं दोगे तो वो ऐसा कमांड नहीं लेगा. अब स्टार्टिंग में इसने इसे कमांड लिया तो इसने देख लिया ये टेस्ट है. स्पेस इसका फर्स्ट पोजिशनल आर्गूमेंट जो कि आपकी पहली वैल्यू होगी. अब इसके बाद वो लेगा कि आपको जो भी उस जैसे भी उसे कंपेयर करना है. फिर उसके बाद उसको जैसे भी आपने वो करना है, किसके साथ कंपेयर करना है. ठीक है. और ये उसका क्लोजिंग हो गया. दैट्स ऑल. अब यहाँ पे 1 इक्वल टू 1 हमने चेक करा, दोनों इक्वल है. ठीक है. सो इट विल रिटर्न 0. अब यहाँ पे 1 इक्वल टू 0 है तो इट विल रिटर्न 1, क्योंकि ये फॉल्स कंडीशन है. ठीक है. ओके. काफ़ी सिंपल है. फॉल्स है तो हाँ. इसमें कुछ लाइक फॉल्स है तो 0, मतलब इन्होंने वैल्यू डिफाइन कर रखी है कि अगर कुछ गलत इसमें कंडीशन है जो सेटिस्फाई नहीं होती है, ठीक है, तो उसका आउटपुट आएगा 1. और अगर कुछ सही होती है तो उसका आउटपुट आएगा 0. ओके. यस. ये था इसमें टेस्ट. ट्राई करना चाहूंगा ऐसे. जैसे 1 अगर मैं इक्वल टू 2 करूंगा, हाँ. स्पेस देनी है बीच में, है ना. स्पेस देनी है. यस. 1 इक्वल टू 2 करोगे. ब्रैकेट के बीच में. ठीक है. हाँ. मैं कॉपी किया यहाँ से. ओके. तभी कोई कोई आउटपुट नहीं देगा ना. ये आउटपुट नहीं देगा. उसके बाद आपको लिखना है एको डॉलर क्वेश्चन मार्क. डॉलर क्वेश्चन मार्क, राइट. तो एंटर करूंगा. सॉरी. डॉलर क्वेश्चन मार्क 0 आएगा इसका, है ना. इसका मैंने लिखा था 1 1 इक्वल टू 2. 1 इक्वल टू के बीच में भी 1 स्पेसेस है. 2. 1 इक्वल टू के बीच में भी स्पेसेस होंगे. 1 स्पेस इक्वल स्पेस 2. अच्छा. ओके. मैं फिर से यस. डालता हूँ. तो अपन डालता हूँ कमांड एको या 1 आएगा इसका. ठीक है. इसका 1 आएगा. तो 1 मतलब फॉल्स होता है, राइट, है ना. 1 का मतलब फॉल्स होता. ठीक है. यस. नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 1 का मतलब ट्रू होता है. हाँ, ट्रू होता है ना मैं हाँ, वही हाँ. सोच रहा था. नॉर्मल लैंग्वेजेस में, पर बैश में फॉल्स होता है. फॉल्स होता है, राइट. हाँ. ओके. ठीक है. वी आर डन विद दिस. नाउ लेट्स मूव ऑन के कंडीशंस. बैश में कंडीशन इफ एल्स अगर आपने नॉर्मली का प्रोग्रामिंग करी होगी तो दिस थिंग कॉल्ड इफ एल्स स्टेटमेंट्स. ठीक है. अब बैश में भी ये चीज़ें होती हैं कि इफ का मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू है, मान लो लेट्स से $1 की वैल्यू n है. स्पेसेस नहीं भूलना चाहिए. देन it was then I will echo and I'll execute with fi. Okay. Now I'll use ./bash. अच्छा इसमें नहीं आता अपने आप. I'll pass n. fi तो होता था. Will I need a semicolon? Syntax nearer fi. fi के बाद सेमीकोलन नहीं. सेमीकोलन नहीं. नहीं. Okay. Do I need an else? इफ देन एल्स, है ना. यस. ओके. एको में दिक्कत है.
इफ हाँ एंड सेमी एल्स, कॉलन नहीं लगेगा मुझे लगता है ना, ये लगेगा इसमें इनपुट के बाद। वैसे तो नहीं लगाते। ओके लेट मी सी, यहाँ पे तो नहीं लगता कहीं, क्योंकि नॉर्मली तो यस। ओके अब यहाँ पे मैं अगर ए पास करता हूँ तो इनवैलिड इनपुट। ओके सो बेसिकली कंडीशन के बाद आपको सेमीकोलन लगाना होता है। ओके ठीक है। यस तो बेसिकली अगर एन पास होगा तो ये वो प्रिंट कर देगा वैल्यू, और नहीं तो इनवैलिड इनपुट प्रिंट कर देगा। तो बेसिकली दिस एन एंड आई पास ए तो इनवैलिड इनपुट। तो ये इफ़ कंडीशन है। अगर आपको लाइक कोई कंडीशन वगैरह लगानी है स्क्रिप्टिंग में तो दिस इज कंडीशन। अब इसमें एक और कंडीशन आती है एल्स एल एंड आई, इसमें मैं एक और कंडीशन, मान लो आपको बोलना है कि मैंने किसी और कंडीशन में कुछ और करना है, राइट। यू विल से डॉलर स्पेसिस $1 इज इक्वल टू ए, ठीक है। इसके बाद फिर देन एंड विल गो विद एको टाइप एन, ठीक है। सो अगर मैं अब ए डालता हूँ तो वो रिटर्न कर देगा टाइप एन, ठीक है। और अगर मैं कुछ ए के अलावा कुछ भी टाइप करता हूँ तो वो इनवैलिड इनपुट दे देगा, और एन टाइप करता हूँ तो एन प्रिंट कर देगा। तो ये है इफ़ कंडीशंस। एन एन मतलब क्या इसमें बता के रहे हैं हम, डॉलर Basically, इक्वल टू एन। हाँ ये डॉलर हमने वैल्यू है कि पोजिशनल आर्ग्यूमेंट की वैल्यू अगर एन है तो आप ये हाँ चलाओगे, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट ठीक की है वैल्यू अगर ए है तो आप ये चलाओगे, और अगर इनमें से ठीक है। कुछ, इन दोनों में से कुछ भी नहीं है तो आप ये चलाओगे। तो ये बाय डिफॉल्ट ये एरर आएगा इसमें जी, जो हाँ एक को कर दोगे आप, है ना। यस यस यस। ठीक है, तो एन की वैल्यू पता, इसे पता कौन सी है, क्या है एन की वैल्यू, एन की या वैल्यू, एन इज अ वेरिएबल यूजर है। एन वैल्यू है और $1 अच्छा वेरिएबल है। वैल्यू वैल्यू ये एक नॉर्मल वैल्यू है, वेरिएबल है ना। एन तो मतलब नॉर्मल एन हो गया हमारा, एन कुछ नहीं है। ठीक है ठीक ये है। वेरिएबल है जो आप पास कर रहे हो, जो हम यहाँ से पास कर रहे हैं, अगर आप देख रहे हो तो एन। हाँ बैच में कर रहे हो आप, ठीक है। यस ये पोजिशनल आर्ग्यूमेंट है। $1 हमारा पोजिशनल आर्ग्यूमेंट होता है। ठीक है ठीक है ठीक यस ठीक है। ओके वी आर डन विद दिस राइट। लेट्स सी कि मान लो मेरे को, मैं इसे छोटे एन से कंपेयर करता हूँ तो क्या होगा। पश्मीना धागों की संग इनवैलिड इनपुट, नहीं मेरे को एन पास करना है, पर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे वो आ जाए। लेट्स सी इसका ऐसा कुछ होता था। एक और छोटी सी चीज़ बता देता हूँ, कॉमा कॉमा डॉ, यहाँ पे 1 कॉमा कॉमा, यस आ जाएगा। हाँ तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मेरे को यहाँ पे अपर केस लोअर केस ना देखना पड़े अगर मैं कोई स्ट्रिंग कंपेयर कर रहा हूँ, राइट। तो आप ये चीज़ यूज़ करते हो, आप उसको 1 को मैंने कॉमा कॉमा लगा दिया, ठीक है। सो बेसिकली अपर और लोअर केस इग्नोर कर देता है उसको, बेसिकली पूरे को लोअर केस में या किसी भी चीज़ में ला के कंपेयर करता है आगे वाले के साथ, पूरे को लोअर केस में ले आता है। अच्छा $1 डॉलर साइन कॉमा कॉमा राइट। यस एक बार ये चेक करते हैं, लेट मी ऑल्सो चेक। हाँ तो बेसिकली ये पूरी चीज़ को लोअर केस में ले आता है। बेसिकली यहाँ पे आपने वेरिएबल का नाम देना है जिसमें स्ट्रिंग स्टोर्ड है आपकी, ठीक है। उसको ठीक है। करली ब्रेसेस में आपने वो डालना है, उसके अंदर डालना है और कॉमा कॉमा डालना है बस। तो ये पूरी चीज़ को लोअर केस, पूरे उसको लोअर केस में ले आता है। अच्छा ये लोअर केस में लगेगा, सिर्फ लोअर केस में के लिए करना हाँ है ना। हाँ अगर आपको पूरी चीज़ को लोअर केस में लेके आना है तो यू यूज़ दिस। अच्छा अगर अपर में लेके आना है तो कुछ और दूसरा होगा वो। हाँ वो आपको मतलब कहीं ना उसमें मिल जाएगा, मेरी शायद इसमें पढ़ा ही होगा ये सब कुछ, नहीं तो अच्छा सर्च अच्छा कर चीट लेना। में, ठीक है हाँ ठीक है यस ठीक है ठीक है ठीक है ओके। ओके तो ये चीज़ होगी। नाउ वी हैव ये आपने इफ़ कंडीशंस देख ली, ठीक है। आपको हर बार एलिफ डालना पड़ेगा, फिर वो डालना पड़ेगा। व्हाट इफ़ यू हैव कि आपको पता है कि आपको एक वेरिएबल है, मान लो वी हैव केस, सी कैपिटल होती थी क्या, केस यस कैपिटल होती थी। आई विल गो विद $1 हमारा एक वेरिएबल है, ठीक है। आई विल गो विद इन, इन ही होता था, ठीक है। सो यहाँ पे मैं क्या लूँगा कि अगर इसकी वैल्यू किसी भी इन वैल्यूज़ के अंदर है तो वो काम करना है। सपोज हमारी वैल्यू लेते हैं हम n, और हम वैल्यू लेते हैं a, और हम वैल्यू लेते हैं b, ठीक है। आई एग्जिट इट विद दिस कि मेरा इससे वो बंद हो रहा है। आई विल गो विद एको,
I'll print $1. Then बंद की हो गई. Guys, I'll be back. I have to connect again. You don't see this, okay? You don't see this at all. I'll be back. जी ये 60 मिनट्स वाली है ना ये, हाँ 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 तो हाँ एक बार हाँ. कटती है कॉल. कोई नहीं. ठीक है नवदीप, Yes. थोड़ा सा ना इसमें कमांड में थोड़ा सा हमारे साथ स्लो चलना है ना. अभी हम ग्रास्प कर रहे हैं चीजों को, हाँ 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 तो कोई ये नहीं. बहुत बढ़िया है, पर ये थोड़ा इंटेंस हो गया हमारे लिए. अब मैं $1 के लिए इनके लिए बेसिकली अभी इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा ही करके आपको एक टास्क दे दूंगा. सो यू कैन सेट. मेरे पास वीडियो पड़ेगी, मैं वीडियो पे अपलोड कर दूंगा, तो यू कैन रीवॉच इट अगेन. ठीक है. सो ओके 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 ओके. मैं आपको एक टास्क दूंगा इसके बाद. ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको 2-3 चीज़ें दूंगा, वो आप इसके बाद बैठ के कर सकते हो. मैंने सोच लिया था Okay, इतना, तो okay, आज क्या क्या करना है. okay. यस. ठीक है. तो डॉलर जो $1 इन डाला, ये वैल्यू चेक करेगा पोजीशन वेक्टर की. एक बार मैं चला दूं, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको. सी. ठीक है. कि मैं भी मोस्टली भूल ही चुका हूँ शायद. एरर देने वाला भी है. सीधा स्टार से चलते हैं. मेरे को यही करना पड़ेगा शायद. एको हाय एंड ESEC. Let's say bash and unexpected token here. Case command not found. I think small c से चल जाएगा फिर. यस. अब मैं n की जगह कुछ भी पास करता हूँ, j. यस. सो व्हाट बेसिकली इट डज इज, ठीक है, कि आपने केस लिखा. कि केस का मतलब केस है कि अगर केस हमारा जो $1 है, जो भी हमारा वेरिएबल है, वो इनमें से किसी भी वैल्यू के अंदर आता है. ठीक है. n, a या b, इनमें से किसी भी वैल्यू के अंदर है, तो ये चीज़ जो भी मैं यहाँ पे लिखूंगा वो एग्जीक्यूट होगी. और इसे मैंने मान लो, इसमें मैंने 2 चीज़ एग्जीक्यूट करवानी है. एको प्रिंटेड. ठीक है. 2 चीज़ एग्जीक्यूट करा दी मान लो मैंने. अब ये दोनों चीज़ मैं यहाँ पे कुछ भी करवा सकता हूँ. यहाँ पे मैं अंदर एक इफ कंडीशन लगा दी, मैंने यहाँ पे कुछ भी करा दिया. ठीक है. मैंने कुछ फाइल लिखवा दिया, मैंने कुछ जो भी मेरे को काम करवाना है, मैं यहाँ पे अपना वहाँ पे टास्क लिखूंगा, वो हो जाएगा. और इससे मैं बोल दूंगा कि हाँ भैया ये काम खत्म हो चुका है, यू कैन एग्जिट. ठीक है. स्टार होता है जैसे हमारे एल्सिफ में एल्स होता था, राइट, कि बाकी सारी कंडीशन में वो चलेगा. ठीक है. डिफॉल्ट में जो डिफॉल्ट में, हाँ, तो डिफॉल्ट में ये चलता है इसका, अगर आपकी कोई भी वैल्यू से मैच नहीं करता. ठीक है. मान लो मेरे यहाँ पे एक और वैल्यू देनी है. ठीक है. आई विल गो विद दिस. ओके. जी एंड विल से स्पेस स्पेस विल गो विद एको ए. इसमें ए प्रिंट कर देगा. ठीक है. एंड विल गो विद जी, और इसने ए प्रिंट कर दिया. ठीक है. तो बेसिकली आप यहाँ पे कुछ भी वैल्यूज दे सकते हो, और आपको मान लो जी पे कुछ अलग टास्क करवाना था, आपने ये करवा दिया. आपने इन वैल्यूज पे अलग टास्क करवाना था, आपने ये करवा दिया. सो दिस इज व्हाट यू कैन डू इन दिस केसेस. तो ये कंडीशंस लग गई आपकी बेसिकली. सिंपल. ठीक है. अब मैंने क्या बताऊँ इसके बाद. बेसिकली एक लिस्ट बता देता हूँ आपको, और एक लूप बता देता हूँ. ठीक है. एंड उससे आपकी स्क्रिप्टिंग का बेसिकली उससे आप नॉर्मल मोस्टली सारी मोस्ट स्क्रिप्ट ऑफ द स्क्रिप्ट आप बना पाओगे. ठीक है. सो नेक्स्ट इज लिस्ट. व्हाट इज़ अ लिस्ट. मान लो आपने बहुत सारी वैल्यूज़ देखी. ठीक है. आपने 1 2 3 4 आपने बहुत सारी वैल्यूज़ देख ली थी. अब आपको हर चीज़ के लिए अलग वेरिएबल तो बनाओगे नहीं, राइट. सो यू स्टोर इट इन अ लिस्ट. अब ये एक काइंड ऑफ लिस्ट ही है. ठीक है. आई शो यू, आई विल मेक वन कमांड लाइन में. ए इज इक्वल टू विल गो विद 1 2 3 4
एंड 5, इट हैज़ 5 वैल्यूज़, ठीक है। हाँ, तो स्पेसेस, सो आपने ये एग्जीक्यूट करा एंड दिस, उसने एक लिस्ट बना दी। अब मान लो मेरे को एको करना है, अब मैं यहाँ पे एको करता हूँ ए की वैल्यू, ठीक है। उसने सिर्फ 1 प्रिंट करी, ये सारा नहीं प्रिंट करा उसने, है ना, क्योंकि करंटली ए की वैल्यू भी वो फर्स्ट लेगा। मान लो मेरे को प्रिंट करवाना है 5th वैल्यू, आई गो विद 5th 4। अब मैंने यहाँ पे 4 क्यों लिखा, 5 क्यों नहीं लिखा, अ क्वेश्चन। पोजीशन इसकी 0 से स्टार्ट होगी तो 1 2 3 4। यस, 0 1 2 3 4, हम्म, तो बेसिकली 4 पे एंड हो गया, तो इसने 5 प्रिंट कर दिया। अब मैं यहाँ पे 0 लिखता हूँ, कर दिया। तो ये पहली पोजीशन प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब मेरे को सारी वैल्यूज प्रिंट करवानी है एक साथ ही, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा @, तो वो सारी वैल्यूज प्रिंट कर देगा। ठीक है। ये आप लिस्ट के साथ कर सकते हो, ठीक है। अब आपको लिस्ट के साथ एक लूप चलाना है, तो हाउ विल यू डू दैट, यू विल गो विद, इसमें लिख देता हूँ, आई विल गो विद फॉर वेरिएबल इन डॉलर, नहीं, यस डॉलर, पहले मेरे को ए डिफाइन करना पड़ेगा इसके लिए। सो आई विल जस्ट डायरेक्टली डिफाइन अ लिस्ट, राइट, आई गो विद 1 2 3 4 5, एंड देन इसमें होता है एग्जिट, देन होता है डू, देन होता है एको, एंड वेयर, एंड इसके बाद होता था डन। डॉट स्लैश बैश अनएक्सपेक्टेड टोकन दिस, तो मेरे को डिफाइन करना पड़ेगा, और आई कैन यूज डॉलर, दिस वर्क, बैड सब्सटीट्यूशन, ठीक है, वो मैंने वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, हो गया ए इज इक्वल टू स्पेस ए @, हाँ, तो बेसिकली वो सब प्रिंट कर दिया। अगर मैं हटा दूँ तो सो बेसिकली जो यहाँ पे मैंने एन लगाया था वो न्यू लाइन रिमूव कर देता है, न्यू लाइन पे नहीं सेंड करता है, ठीक है। अब ये इसने बेसिकली कमांड ली, इसने 1 2 3 4 5 एज एन इनपुट लिए और 1 2 3 4 5 प्रिंट कर दिया। मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूंगा वो प्रिंट कर देगा, अगर मैंने को उसके साथ कुछ ऑपरेशन करवाना है वो ऑपरेशन भी कर देगा, ठीक है। फॉर वेरिएबल इन, बेसिकली यहाँ पे वेरिएबल क्या है, आप एक नया वेरिएबल डिफाइन करा, ठीक है, ठीक है। ये एक नया वेरिएबल है जो आप यूज़ करोगे आगे हाँ, इन ऑलरेडी जो एक डिफाइंड लिस्ट थी, ठीक है। ठीक है, जो कि ये थी। सो ये लिस्ट थी और ये वेरिएबल था, तो इसके अंदर के सारे वेरिएबल्स के लिए ये एक एक बार चलेगा अब, ठीक है। ठीक है। 1 के लिए चलेगा, एक 2 हो के लिए गया। चलेगा, 3 के लिए चलेगा, 4 के लिए चलेगा, 5 के लिए चलेगा। अब उसके लिए ये टास्क करेगा, इसके अंदर मैं कुछ भी दे सकता हूँ, ठीक है। ठीक है। डू के बाद लूप चल रही है इसकी, ये हाँ, फिर डू के ऊपर बाद जाएगा, फिर पहले 1 के लिए चला, सेकंड 1 के पोजीशन लिए में जाएगा। 1 प्रिंट करा इसने, फिर 2 के लिए गया, 2 के लिए 2 प्रिंट करा इसने, फिर जो भी इसको करना था वो प्रिंट कर दिया इसने। अगर हमने 1 लगाता यहाँ पर, इसकी 1 कहाँ पे, ऊपर यहाँ पे अपना ऐड क्रेडिट, हाँ, से चेंज करके, यहाँ पे सिर्फ 1 लगा हुआ है, तो ये एक ही बार चलेगा, है ना, तो एक ही बार सिर्फ लूप चलेगी इसकी। यस। सेकंड पोजीशन में तुमने प्रिंट कर देना इस पे। हाँ, अच्छा, इसकी मतलब आइटरेंस नहीं अपनी इस पर ना लगा सकते, इसमें कितनी बार चलना चाहिए, है ना। नहीं, जैसे मेरे को इसे अल्टरेशन करना 5 बार। 5 बार वो होता है इसका, उसका मैं फॉर्मेट, रुक जाओ, लेट्स से फॉर जैसे मैंने 2 को प्रिंट कराना 5 बार, है ना, 2 बार घूमे ऊपर गए फिर जाए ऊपर। ओपन बैश होता है उसका, आई थिंक रेंज होती है उसकी, आई थिंक मैं भूल गया, फॉर एन इन ए बी सी,
ये रहा 1 to 5। बेसिकली आपको कितनी बार इटरेट कराना है वो आप नंबरिंग के थ्रू ऐसे कर सकते हो। ये रहा। और n in 1 to 5 and 2 echo dash n है ना? यस, तो बेसिकली 1 to 5 ये 5 बार इटरेट होगा और वैल्यूज़ के लिए जो भी आपको देनी है। ओके। यस, अब 1 5 और ये आप ऐसे दोगे तो ये 2 2 के गैप पे चलेगा। ये 1 to 5 2 2 के गैप की वैल्यूज़ पे। ठीक है। 1 3 5, ठीक है। और ये भी यूज़ कर सकते हो, ये वाला, ये अलग कल बात करते हैं बच्चे ये से। ज़्यादा कॉमन है ना? हाँ, हाँ, ये वाला ये कॉमन। आपको पता होगा, आपको अगर आपने कर रखा तो ये कॉमन है, काफ़ी कॉमन है। हाँ, i equal 1 i equal less than 1 i plus plus। हाँ, ये यूज़ कर सकते हो। तो हम ये फॉर्मेट यूज कर सकते हैं, सी स्टाइल है ना? सी हाँ, सी। ये भी यूज़ कर सकते हो, सी स्टाइल। ओके 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 ओके। और यहाँ से मतलब ब्रेक वगैरह और कंटिन्यू वगैरह सेम ही होता है इसमें। तो बेसिकली दिस इज अबाउट बैश। आज के लिए तो ठीक है। काफ़ी हो गया, 1 घंटा हो हाँ, गया। ये हो गया, ये बढ़िया हो गया इसका तो। हाँ, तो अब मैं 2 3 चीज़ें बताता हूँ क्या कर सकते हो। आप एक स्क्रिप्ट लिख देना कि मैं डॉक में बोल देता, लिख देता हूँ ये चीज़। स्क्रिप्ट टू फाइंड, नहीं, फॉर चेकिंग अप टाइम, फॉर चेकिंग अप टाइम एंड रनिंग सिंस। सिस्टम का सिस्टम का अप टाइम कितना है, बेसिकली आपका जो ये ठीक है। होता है टास्क मैनेजर भी होता है। हाँ, जो भी आपका अप टाइम होता है वो आपको बस वो चीज़ें चेक करके वहाँ पे प्रिंट करवानी है। ठीक है, एक तो आपकी ये स्क्रिप्ट हो गई। आप इसे कॉपी करके ना चैट में डाल दो, सो वी हैव। मैं आपको डॉक शेयर कर दूंगा ये पूरी अभी उसी में। ठीक है। हाँ, ओके। यस, मैं बाकी यहाँ पे लिख देता हूँ 2 3 टास्क। हो सके ये तो काफ़ी सिंपल टास्क है, आपका अराउंड 5 10 मिनट में हो जाएगा अगर आप चीट शीट देखोगे तो। ठीक है, ठीक है। और 1 2 चीज़ और लिख देता हूँ मैं। अगर आपके पास कुछ अच्छा आता है तो आप खुद बना देना। ठीक है, ठीक है। ठीक है। यस, आज हम यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं। स्टॉप शेयरिंग। मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, लिंक भेज दूंगा आपको। ओके ओके। यस, आपको रीवॉच करना है तो रीवॉच कर लेना। Sure, bro. Thank you so much, Navdeep. हाँ जी ये ब्रो। बढ़िया लगा, ये तो अच्छा टॉपिक था इसका, है ना? थोड़ा सा नवदीप, जैसे आप रेगुलर जैसे आप काम करते हैं डेवॉप्स में, तो ये हाँ, चीजें आप बैश में यूज करते हो या नॉर्मल कमांड से यूज होती हैं? नहीं नहीं, यही चीज मतलब बैश ही यूज़ होती है और यही कमांड्स यूज़ होती है जो मैंने आपको बताई ना आज, ये मोस्टली यूज़ होती हैं। अच्छा, ये रेगुलर में यूज होंगे जैसे प्रोग्रामिंग में या किसी चीज में, है हाँ, ना? बेसिकली एको कैट ये सब आपका नॉर्मली रेगुलर यूज़ होता है काफ़ी। ओके 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 ओके। और आपकी ठीक है। बेसिकली और भी चीज़ें यूज़ होंगी, वो जब जैसे जैसे आएंगी वैसे वैसे बताऊंगा थोड़ी बहुत। ठीक पर है। लाइक वो उसमें पड़ी हैं, चीट शीट में पड़ा होगा मोस्टली सब कुछ। अच्छा अच्छा। वो नेटवर्क की कमांड्स होगी कि आपको आपके चेक पोर्ट्स वगैरह चेक करें एंड ऑल वो चीज़ें। वो तो मैंने अच्छा, सोचा कि ये जब क्लाउड वगैरह कराऊंगा डॉक तो उसके साथ ही इंट्रोड्यूस करा दूंगा पोर्ट्स एंड ऑल चीज़ें सारी। मुझे लगता है बैश मोस्ट प्रोबब्ली आपकी डॉकर में यूज होती होगी ना, कंटेनराइजेशन में, है ना? डॉकर की अपनी अलग चीजें। स्क्रिप्ट होती है, डॉकर की अलग स्क्रिप्ट होती है ये आपको। अच्छा, उसकी लगता है। हाँ, वैसे अगर आपको बनानी है, अगर आपको कोई चीज़ एग्जीक्यूट करनी है तो इसकी अलग बैश की स्क्रिप्ट्स बना दी जाती हैं और उसको यूज़ कर लिया जाता है। डॉकर की स्क्रिप्ट अलग होती है। अच्छा, ठीक है। ओके 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 ओके। यस, आज के लिए बैश करते हैं। कल एक बार मैं आपको, अगर आपने बैश कर ली, कल एक बार बैश में 2 3 चीज़ें और बताऊंगा। ठीक है, फिर पावर ठीक है। शेल का 10 मिनट में बता दूंगा, मोस्टली सेम ही होता है पावर शेल का। हम्म। ठीक है, तो पावर शेल हो जाएगा और बैश हो जाएगा, फिर वील मूव ऑन टू पाइथन। ठीक है। यस, ठीक है। पाइथन को मैं अराउंड 1 2 या 3 दिन का थोड़ा टाइम दूंगा एंड फिर वीकेंड। ठीक है। पर आपने अगर बैश कर लिया तो पाइथन का बेसिक सिंटैक्स तो आपको आ ही जाएगा, सेम ही होता है, काफ़ी आसान होता है। हाँ। ओके ओके ओके। बस, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ता है स्पेसिंग का या इसका हाँ इसका ना हाँ बैश हाँ, में। पाइथन में नहीं रखना पड़ता। पाइथन में मैं फिर आई डायरेक्टली मूव ऑन टू ऊप्स। ओके 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 हाँ, ओके वो ओके। ऊप्स वगैरह के कॉन्सेप्ट आपको बता के देन